వాస్తవాలు లైవ్ టీవీకి స్వాగతం. హైదరాబాద్లోని తాజ్ కృష్ణ హోటల్లో ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కొమ్ము అగిరప్ప నిర్వహించిన ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా వరల్డ్ చైర్మన్ డాక్టర్ నేమ్ సింగ్ ప్రేమి హాజరు కావడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ముఖ్య నాయకులు పాల్గొని పలు అంశాలపై చర్చించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో వరల్డ్ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ మానవ హక్కులకు భంగం కలిగించే ఏ ఒక్క పనిని కూడా చేయకూడదని, నిష్పక్షపాతంగా ప్రజలకు అనుకూలంగా మన సంస్థ పనిచేయాలని వారు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. గతంలో తమ సంస్థలో పనిచేసిన వారి సామర్థ్యాలను గుర్తించి వారిని ప్రోత్సహిస్తూ శాఖల యందు మార్పు చేస్తూ నియామక పత్రాలను అందజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మైనారిటీ డైరెక్టర్ రఫియా మాట్లాడుతూ మహిళలకు సంబంధించి ఎటువంటి సమస్యలు అయినా వాటిని ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే పరిష్కరించాలని, ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా నిరంతరం తమకు అందుబాటులో ఉంటారని మైనారిటీ సెల్ డైరెక్టర్ రఫియా తెలియజేయడం. తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కొమ్ము అగిరప్ప మాట్లాడుతూ రాబో రోజులలో అన్ని జిల్లాలలో కమిటీలు వేసి ప్రజలకు స్వచ్ఛందంగా సేవ చేయాలని పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కొమ్ము అగిరప్ప, ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ మైనారిటీ సెల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రఫియా, వైస్ ప్రెసిడెంట్ మహమ్మద్ అఫ్జల్, నవ సంగ్రహ సమితి అధ్యక్షులు జైహింద్ గౌడ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ టీజీ శ్యామ్, ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ మెంబర్ అజయ్ కుమార్, రంగారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులు జంగయ్య, ములుగు జిల్లా అధ్యక్షులు మేకల పోచయ్య, ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ సాంస్కృతిక విభాగం అధ్యక్షులు మాస్టర్ జీ, నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అధ్యక్షులు సాల్వాచారి, వనపర్తి జిల్లా అధ్యక్షులు విశ్వంబాబు, వనపర్తి జిల్లా కోఆర్డినేటర్ ప్రవీణ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ శైలన్ కుమార్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. All these are activities being done. Actually, railing was not there. This photo belongs to him, right? He is a first means right? Manapatni district. Nagar Karnool district, like this, Nagar Karnool district also is there. आप एक काम और करें, एक नंबर फीड कर लें जिससे कोई भी मैसेज हो ना तो उसके लिए डल जाए. 88 हैदराबाद शहर में मेरे कारण कोई भी रहा हो, लेकिन इस आगमन पर आप सब लोगों के बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी का एहसास हो रहा है. आई एम फीलिंग प्राउड कि मैंने किसी सब्जेक्ट को चुना है जिस सब्जेक्ट को लेकर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और वो सब्जेक्ट है IHRO. IHRO 2009 में जब फाउंड हुआ उस वक्त डॉक्टर जे राजेश्वर राव, जो आपके राज्य से ही बिलोंग करते थे और खम्मम जिले से या हैदराबाद में भी उनका कोई घर है, वो जब पहली बार मिले 2006-07 में, तो हमारी बात शुरू हुई. एज ए एक्टिविस्ट में उससे पहले काम कर रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय में. जब उनसे मुलाकात हुई तो एक एक करके 3-4 लोगों का जमावड़ा हुआ और तय हुआ कि हम लोग अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे. ये अधिकारों की लड़ाई है क्या? अगर आपका सब्जेक्ट बड़ा है, आपसे पहले अगर सब्जेक्ट है तो वो बहुत बड़ा है. अगर मैं सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ूंगा तो IHRO कुछ भी नहीं है. सब्जेक्ट बड़ा तब होगा जब आप ये भूल जाएंगे कि मैं राजेश कुमार, मैं अजय कुमार, मैं नेम सिंह प्रेमी, मैं आलिम, सब्जेक्ट मेरे किस उद्देश्य के लिए मैंने काम किया है. जैसे जिस शहर में हम हैं, नाम है निजाम साहब, उनके जितने बनाए हुए हॉस्पिटल्स, उस पर जाकर के हम जिक्र करते हैं तो 2 बात आती है कि इन्होंने ये अच्छा काम किया, ये बिल्डिंग बनाया, इसके लिए लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे लाभान्वित होते हैं, इससे फ़ायदा लेते हैं. वो सब्जेक्ट है. और निजाम साहब इंडिविजुअल पर्सन है, चाहे वो राजा हों, रंक हों, बड़े हों, छोटे हों. सबसे पहले जब आप स्वार्थ की बात करते हैं तो यहाँ से आपका काम शुरू होता है, जो आप समझ हैं, जिसके लिए आप ह्यूमन राइट्स के सब्जेक्ट को नहीं समझते. ह्यूमन राइट बेसिकली वो मदद है, वो लीगल अवेयरनेस है, वो मदद इस वे में है कि हम सिर्फ खाना बांटने का काम, कपड़े बांटने का काम, दवाई बांटने का काम नहीं करते. हम वो काम करते हैं जिससे आत्माएं सुधर जाती हैं, जिससे जीवन सुधर जाता है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को खड़ा कर सकते हैं. जैसे रोजगार देने का काम, जैसे जीवन में अच्छे फल, अच्छे विचार लाने का काम. लेकिन वो तभी होगा जहाँ पर एक MLA के लिए 100 करोड़ रुपए का खर्चा हो, जहाँ इतना करप्शन हो, उस राज्य में आप अच्छे की उम्मीद करते हैं अजय कुमार जी? आप जो आदिवासी क्षेत्र से आए हुए लोग, वो जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, जब तक आपका सब्जेक्ट, आप यूनाइट होकर उस सब्जेक्ट के लिए काम नहीं करेंगे, XYZ नाम कोई भी हो, लेकिन सब्जेक्ट को अगर बड़ा कर देंगे तो वो सबसे बड़ा काम होगा. उस दिन को हमें याद करना है, उस दिन के लिए हमें काम करना है.
IHRO की उपलब्धियों में अगर मैं गिनाने लगूं तो 24 घंटा से ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन किसी के पास भी 24 घंटे से 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं है। पूरा जीवन ही इस 24 घंटे पर टिका है, जिसमें 24 घंटे से 1 सेकंड भी ज़्यादा किसी को अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, अभी उद्देश्य की बात, IHRO की बात अगर हम उपलब्धियां गिनवाएं तो सबसे पहले 2012 में 27 लोगों को फांसी की सजा से बचाने का काम IHRO ने किया, जो पंजाब प्रदेश के यूथ जो रोजगार के लिए शारजा UAE में गए हुए थे, और वो काम उनके लिए 6 महीने संघर्ष करने के बाद हमारी पंजाब टीम ने वहाँ जेल का विजिट किया, वहाँ के यूनाइटेड नेशंस के उस लॉयर को साथ में लेके गए, जेल विजिट किया और वहाँ की सरकारों से प्रेरित किया। तब पता लगा कि उन लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है ब्लड मनी दे करके, क्योंकि हमारे देश में वो कानून व्यवस्था नहीं है। वैसी स्थितियों में हमने यूनाइटेड नेशंस में आवाज़ दी बहाइस लोगों के लिए। बहाइस का वो धर्म है जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, जिसके बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वो मेल और फीमेल को एक इक्वालिटी पे रखता है। इस नाते वो धर्म नाम देता है। वो धर्म तो हमारा भी है, मेरा भी है, आपका भी है, वो सबका है। हमने यूनाइटेड नेशन में उनकी आवाज़ उठाई और वो पूरी दुनिया ने उसको जाना, जिसके लिए जापान गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग इनके भले का काम करेंगे। इनके साथ जो भी अत्याचार होते हैं, ईरान में सबसे ज़्यादा अत्याचार उन लोगों के साथ हुए, लगभग 200 हत्याएं हुई, लगभग 600 घरों को जला दिया गया। ये काम है IHRO का वॉइस देने का, वॉइस फॉर द वॉइस। जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, मेरे बीच में सभी मौजूद लोग बैठे, मेरे बड़े भाई पंजला, जय हिंद साहब, राजेश कुमार जी, हमारे मास्टर जी, हमारे अग्रेपा जी, मैडम बैठी, हमारी बहन राफिया जी, हमारे जंगिया जी, और बहुत सारे लोग, हमारे भाई यूथ के पुराने फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, बहुत अच्छा काम किया है, रेड्डी साहब। तो ऐसे सभी लोग तब कामयाब होंगे जब सब्जेक्ट को बढ़ा कर लेंगे। IHRO के कामों में हमने 450 लोगों को बचाया, जिनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए लीबिया में। उन लोगों के लिए हमने 3 महीने लगातार संघर्ष किया और लगभग उनमें से 350 लोग वापस हमारे देश वापस आ गए। IHRO ने काम किया अभी सरकार की मदद से। 2021 में जब कोविड था, सेकेंड वेव में, हमने 400 बेड का कोविड हॉस्पिटल चलाया दिल्ली सरकार की मदद से। IHRO ने काम किया बहुत सारे राज्यों में, जैसे फारूक घोसी जो मुंबई के हमारे रहने वाले हैं, लगभग 1.5 करोड़ का राशन लोगों की मदद के द्वारा, जिनके पास 11 लाख का अरेंजमेंट नहीं था, उन्होंने 1.5 करोड़ का राशन उन 3 महीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारी महिलाओं में शिल्पी चौधरी लखनऊ में बहुत सारे काम, महिलाओं को नैपकिन्स बांटना, महिलाओं को दवाइयाँ देना, महिलाओं के उद्धार के लिए काम करना, ऐसा काम करती हैं। हमारे आपके तमिलनाडु से मैडम जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनका एक सहयोग रहा, उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर चलाए। विक्रांत राणा एडवोकेट एक यहाँ से भी दूर पंजाब में जो रहने वाले हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर 6 जगह वहाँ पर चलवाए। ऐसा एक काम नहीं है, मैं याद भी करूँ तो कितने दिन लगेंगे। उद्देश्य ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी उपलब्धियां बताने के लिए आया हूँ, ये IHRO ने क्या किया ये बताने के लिए आया हूँ, लेकिन इससे आप ये सीख सकते हैं कि IHRO किन कामों के लिए फिजिबल है, किन कामों को आसानी से कर सकता है। तो पहला काम, सबसे पहले आपको ये भूलना होगा कि इंडिविजुअल अपने लिए फाइट करना है, दैट इज स्वार्थ। अगर स्वार्थ के लिए फाइट करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हर आदमी अपने परिचय से पहले बताता है, मैं कांग्रेस में काम किया हूँ, मैं बीजेपी में काम किया हूँ, मैं RSS में किया हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी में किया हूँ, मैं अकाली दल में किया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, व्हाटएवर। ओके, हमारा किसी से कोई गुरेज नहीं, हमारे लिए सब ऑल आर वेलकम्ड। मैंने किसी भी पार्टी के लिए विरोध की बात नहीं की, मुझे भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है, मुझे AIM ओवैसी साहब से भी कोई